السلام علیکم محترم ناظرین کرام. آج کا جو ہمارا ویلاگ کا سیگمنٹ ہے اس میں الحمدللہ سب سے پہلے میں کرن حیات کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ. یہ ہماری ایک ینگ خاتون یہاں پہ پچھلے کافی عرصے سے ہیں اور لٹریچر سے ان کا بیک گراؤنڈ، مارکیٹنگ سے، انٹیریئر ڈیکوریشن اور ملٹی نیشنل ٹریولنگ کا ایکسپیرینس ہے. تو پھر ان سے ملاقات ہوئی تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں ہم مل کے مختلف اپنے کمیونٹی کے، اپنے ملک کے معاشی اور قانونی اور معاشرتی معاملات پہ مل کے بات چیت کیا کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہے گا انشاءاللہ. تو یہ تو تھا کرن کا تعارف. تھینک یو ویری مچ سر. سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو کہ آپ جیسے سینئر اور آپ جیسے کیلیبر کے پروفیشنل کے ساتھ مجھے موقع ملا آپ کا انٹرویو کرنے کا، آپ کے ساتھ کام کرنے کا. اٹس بین نائس پلیجر اینڈ اٹس این آنر فار می ٹو بی ورکنگ ود یو. سر آج ہم ایکچولی بات کریں گے پاکستان اور عمان کی کمیونٹی کے حوالے سے. پاکستان اور عمان کے درمیان جو تعلقات کمرشل اور جو بزنس تعلقات ہیں اس میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو کہ پاکستانی کمیونٹی آگے نہیں بڑھ پاتی ہے، جو نہیں کر پاتی ہے، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. تو اس میں آپ کی رائے جو ہے وہ ویلیویبل ہے اور جو ہمارے مشکلات ہیں اس پہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو زیر بحث لے کر آئیں گے. سر پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، کون سے پرائمری فیکٹرز ہیں یا کون سے ہنڈرنسز ہیں جو کہ پاکستانی کمیونٹی کو عمان آنے سے، کام کرنے سے، ایسا کیا پاسبلٹیز نہیں ہو پاتی جو وہ چاہتے ضرور ہیں مگر ہو نہیں پاتا؟ کیا ایسے اسپیسیفک فیکٹرز ہیں؟ کون سی انڈسٹریز ہمارے ہاں ایسی ہیں جو یہاں لا کے ہم فلرش کر سکتے ہیں؟ دیر آر لاٹ آف پاکستان از دا میجر پوٹینشیل جس کے پاس موجود ہے دنیا میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے دنیا کی نظریں پاکستان پہ موجود ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اٹس گولڈ، پاکستان از اے گولڈ. تو اس میں آپ سر اپنی رائے دیجیے پلیز. دیکھیے کرن، بڑا ایک اچھا ٹاپک میرے خیال میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور میں کیونکہ ایک عرصے سے یہاں پہ مقیم ہوں اور عمان کی ترقی اور اس کی گروتھ کا آئی وٹنس ہوں، اور میرا تعلق کیونکہ بینکنگ اور لا سے رہا ہے تو یہاں کی پوری جو ترقی کو اپنے سامنے وٹنس کرتا رہا ہوں. بنیادی طور پہ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں آلویز، ہمیشہ جب کہیں کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی تقریر مجھے کرنی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں عمانیوں کو کہ نحن مقصرین خاطرکم، عربی میں، کہ ہم نے آپ کی جو ہے خدمت میں کمی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وی آر دا فرسٹ نیبرنگ کنٹری ود عمان. ہم ان کے سی بارڈر کے ہمسائے ہیں. ہمارا یہاں سے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے کراچی کا، نیئرسٹ کنٹری ہیں، اور ہم بموازنہ عمان بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں، اور ہمارے پاس بہت زیادہ سکلڈ لوگ موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے جو کہ قابل فخر ہے کہ وی آر دا اونلی اسلامک کنٹری ود نیوکلیئر پاور. تو ایک بہت بڑی بات ہے کسی بھی شخص کے لیے دنیا میں کہ اگر کوئی ملک اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں اس حد تک لے جاتا ہے کہ نیوکلیئر بناتا ہے تو باقی جو چیزیں، صنعت، انڈسٹری تو کوئی چیز ہی نہیں. بالکل. جتنا میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا بڑا بینک ہے ایکسپرٹیز کا، جیسے آپ نے انڈیکیٹ کیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ عوامل وہ کیوں نہیں ہو پائے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ میری نظر میں ہمارے ہاں جو بیوروکریسی لیول پہ وہ کام نہیں ہوا. یہ اس پوٹینشل کو اس طرح سے ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا، اس سیگمنٹ کو اس طرح دیکھا ہی نہیں گیا کہ یس، جو بیسکلی کہ عمان از اے ینگ کنٹری اور ابھی یہاں بہت کچھ بننا باقی ہے. بہت پوٹینشل ہے اس کنٹری میں، بہت بڑا پوٹینشل ہے ہر فیلڈ میں، رائٹ فرام ایجوکیشن ٹو انجینئرنگ ٹو انڈسٹری، آئی ٹی سیکٹر سر، بہت ہر سیکٹر میں. آپ یہ دیکھیے کہ میں جسٹ تعارفاً بتا رہا ہوں کہ آئی ایم دا فاؤنڈر آف بیکن ہاؤس اسکول ان دس کنٹری. ماشاءاللہ. جی، آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. جی، میں نے امریکن لائسیم اسکول ایک بنایا ہے جو الحمدللہ اس کی 3 برانچیں ہیں.
अमेरिकन लाइफ स्टफ एक स्कूल है, वो पाकिस्तान का ब्रांड है, चल रहा है। तो बात यह है कि बड़ा पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। अब रही बात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, तो अभी लोगों की इत्तला के लिए, मालूमात के लिए, आप किरण ये देखिए कि अभी हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम ने यहाँ पे जो कवानीन में तब्दीली लाई, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिशनली ओमान में पहले आपको 1.5 लाख रियाल के कैपिटल से कंपनी बनानी पड़ती थी। जी जी। उसके अंदर अमेंडमेंट आई है, रॉयल डिक्री इशू हुई है, और अब जो है आप एज ए फॉरेन इन्वेस्टर अपनी कंपनी बना सकते हैं। बिल्कुल। और उस कंपनी में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को ये अवेयरनेस नहीं दी गई, और हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम ऐसे ऑफिसेज हैं कि जिनके पास जाके जो लोग मालूमात दे सकें कि कंपनी फॉर्मेशन को कैसे किया जाता है, फिर उसमें क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ओमान में बहुत ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज का बड़ा पोटेंशियल है, एसएमईज का। जी, एसएमईज में भी स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्रीज, और जो कि पाकिस्तान एक बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले कर सकता है, उसके ऊपर हम काम आपके ख्याल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ आने चाहिए, जो कि ओमान और पाकिस्तान का ब्रिज भी एक तरह से डेवलप करें और उसको आगे बढ़ाएं, पाकिस्तानी कम्युनिटी, मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, जैसे और नेशनैलिटीज के लोग होते हैं और आगे चलते हैं, वो कौन से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं 2-3 सेक्टर्स को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो एक सबसे जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो है एक ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है। जी जी। उसमें पाकिस्तान के पास बहुत स्किल है। उसमें अगर लोग आए और यहाँ आके अच्छी वर्कशॉप बनाएं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंडस्ट्री के लिए बड़ा काम है। जी जी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने इंडस्ट्री लगा ली है, लेकिन उनको सर्विस सेक्टर में क्वालिफाइड कंपनियां चाहिए छोटी, जो उनके छोटे मोटे जो मामलात हैं या उनकी एनुअल जो रेनोवेशन है उसमें बड़ा पोटेंशियल है। इनको स्किल्ड लेबर की बहुत जरूरत है, और वो लेकिन नॉट ओनली इंडिविजुअल लेबर्स, एज ए कंपनी, जैसे पाकिस्तान में डेस्कॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने बड़े काम किए। इसी तरह और उससे भी छोटे लेवल की कंपनियां यहाँ पे आए, और ऑयल एंड गैस के फील्ड में सपोर्ट सर्विस चाहिए, स्पोर्ट इंडस्ट्री चाहिए, बहुत काम है सर्विस सेक्टर में, खासतौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और लेकिन जैसे हमारे यहाँ अभी पिछले दिनों बराए मेहरबानी इसको कुछ लोग तनकीद न समझे, एक्सपो कराया गया। जी जी। मैं तो खैर ये समझता हूँ कि किसी मुल्क के नाम से अगर एक्सपो कराया जाए तो उसका ख्याल रखना चाहिए कि उसका एम्बियंस और उसका उस लेवल से प्रेजेंटेशन हो कि पाकिस्तान जो है ना खाली एक फुटबॉल नहीं बनाता, या वो चंद एक जो है ना वो हैंडीक्राफ्ट नहीं बनाता, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, तो उस लेवल पे होना चाहिए था। तो हमारा जो तारुफ है वो अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी इस तरह कराती है जैसे कि हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। ओमान में तो खुद बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है, 2 प्लांट हैं बड़े ओमान में, एक सलाला में है, एक यहाँ बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट है। स्टील की इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है, फर्टिलाइजर का इतना बड़ा मल्टीनेशनल लेवल के प्लांट हैं। तो फर्टिलाइजर्स हम या स्टील इंडस्ट्री का हम कुछ कर सकते हैं, हम आ सकते हैं, हमारे बिजनेसमैन आ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है, और वो हमारे नेबरिंग कंट्री के पास उसका पूरा मोनोपोली है, और पूरी प्रोडक्शन वो ले जा रहे हैं। इसके ऊपर अगर कोई जो लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के हैं, हमारे यहाँ असल में खुद पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें बहुत सी जो है मल्टीनेशनल कंपनियों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो ये चाहते हैं कि वहीं की वहीं उनकी प्रोडक्ट्स मार्केट हो, और उन लोगों को जो एंड यूजर हैं उनके दरमियान एक मिडिल मैन है, जो उनके ट्रेडर्स हैं, वो अगर उनको वहां पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके प्रेजेंटेशन दी जाए, तो उन लोगों को बुला के बताया जाए कि इस मुल्क में आपके नेक्स्ट डोर बैठे हैं, वहां पे अगर आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगाएं तो डायरेक्ट आप पाकिस्तान को बेच सकते हैं। पाकिस्तान को बहुत जरूरत है, और ये ओमान बहुत बड़ा मुल्क है।
आबादी कम है लेकिन मुल्क बहुत बड़ा है, बिल्कुल और फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम है। इंडस्ट्रियल जोन्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको इंसेंटिव्स हैं, जमीन आपको लीज पे गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है, और फाइनेंस भी मिल जाता है, फंडिंग भी मिल जाती है, तो ये सेगमेंट में बड़ा काम हो सकता है। बिल्कुल सर, ब्यूरोक्रेसी कैसे रोल प्ले कर सकती है आपके ख्याल में? क्या फैक्टर्स लेके आ सकती है? क्या बेहतरी, क्या चीज उसके अंदर वो एक कहते हैं ना कि जी एक फिजिबिलिटी बना सकती है हमारे छोटे या बड़े बिजनेसमैन के हवाले से? देखिए, यही तो मैंने शुरू में अपने इसमें आपको बताया था कि ब्यूरोक्रेसी जब आप बात करते हैं तो वो बताते खुद वो सवाल का जवाब है। जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आ जाती है ना, वहां पे फिर ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स अनफॉर्चुनेटली आज से 25-30 साल पहले तक तो एक तरबियत दी जाती थी कि पब्लिक सर्विस है, आप चाहे आप डिप्टी कमिश्नर बन जाएं, या आप किसी सिफारत खाने के अफसर बन जाएं, या आप एसएसपी लग जाएं, या आप पब्लिक सर्विस के लोग होते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वक्त के साथ जो हमें तजर्बा हुआ कि बहुत से लोग जो हैं वो पब्लिक सर्विस की बजाय वो अपनी जो कुर्सी को मजबूत करने के चक्कर में लग जाते हैं। बल्कि यहाँ तक होता है जैसे ऊपर का माहौल है, देखें किरण आपको पता है हमारे यहाँ इट्स वेरी सैड टू से कि आपकी जनरेशन के लोग ये देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक्सटेंशन ले रहे हैं, हमारे जर्नल एक्सटेंशन लेते हैं, तो इसी तरह हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स भी एक्सटेंशन लेते हैं, तो वो उस मेहनत में लगे रहते हैं कि हम एक्सटेंशन लेके अपने वक्त को ऐश करें। ये जो नेशनल इंटरेस्ट है जिसकी आप बात करें, ये तो वो लोग करेंगे ना कि जिनके अंदर नेशनल इंटरेस्ट हो। आई हैव सीन पीपल वर्किंग फॉर नेशनल इंटरेस्ट, और यहाँ पे बड़ा उन्होंने काम किया है अपने अपने मुल्कों के लिए। अब हमारा टोटल ट्रेड 23 तक $173 मिलियन है, कुछ भी नहीं, नेक्स्ट डोर बैठे हैं, कश्तियों पे भी माल आ सकता है। तो 173 मिलियन की कोई फिगर है बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, सिर्फ 23 की आपकी एक्सपोर्ट की फिगर है, उसमें मेनली आप चावल मंगाते हैं और कुछ आयरन और उससे बेस्ड कोई प्रोडक्ट्स हैं जो आती रहती हैं, स्पेसिफिक जो चल रहा है बस कोई आपने उसको फैलाया नहीं, कोई वहां के चैम्बर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं किया। खासतौर पे अभी जो नए कानून तब्दील हुए हैं उसमें तो बहुत ज्यादा अभी चांस है, जो कि मैं अपने तौर पे कोशिश करता रहता हूं कि इन्वेस्टर्स को बताता रहता हूं कि आइए, इस मुल्क में बड़ा काम है, इस मुल्क में बड़ी जरूरत है। मतलब आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ओमान आए और हम यहाँ पर हैं उनकी हेल्प करने के लिए। आपको पता है कि सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड लॉयर, मोर देन सर्विंग पाकिस्तानी कम्युनिटी मोर देन 4 decades। जी बिल्कुल, याद आती है। तो एंड मेनी मोर टू गो। तो बिल्कुल आप आइए और इनिशिएटिव लीजिए, हरकत में बरकत है। बिल्कुल। तो हम ब्रिजेस को कम करेंगे सर अपनी कम्युनिटी के लिए, और आप लोग इनिशिएटिव लीजिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम हर जगह। सर पेट्रियोटिज्म की तरफ से कमी लग रही है मुझे, मेरे ख्याल है। नहीं, यही तो वजह है कि पेट्रियोटिज्म की कमी है। तो हमारे यहाँ असल में सेल्फ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम किरण ये आ गया है कि चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या कोई हमारे यहाँ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी में लोग हैं, तो वो ठीक है, बिजनेस में अपने आप को एडवर्टाइज करना, प्रोजेक्ट करना, ये एक फिक्री अमल है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन हमारे यहाँ कुछ सेल्फ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा है कि बस अपनी जो है ना वो बात करें ज्यादा। पेट्रियोटिज्म में ओवरऑल कमी आ गई है। अगर पेट्रियोटिज्म होता तो इस मौजू पे फिर हम एक प्रोग्राम कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, कि उसकी कमी हुई है। बिल्कुल है, और चूंकि हमारे यहाँ पेशेंस की भी कमी है सर, तो मेरा ख्याल से इस वीडियो को हम यही इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल ठीक। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा असल में ये बहुत बहुत वास्ट मौजू है, एक वीडियो में कवर हो नहीं सकता, तो इंशाल्लाह व्यूअर्स आपके लिए हम और मजीद बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे इसी हवाले से कि आपको हेल्प आउट हो पाकिस्तान से ओमान आने के लिए, और जो हम कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए हम करेंगे। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूअरशिप बढ़ाइए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हम पूरी गाइडलाइन देंगे, हम उनको लीगली और कमर्शियली गाइड करेंगे। उनको अगर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी बनानी है वो भी बनाएंगे, उनको गाइड, उनको यहाँ पे सेटअप करके देंगे, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट शो करें। हम ओमान के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। बिल्कुल जिसको आप इंटरेस्टेड है वो आप हमें कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए, हमारे नंबर्स मेरे पास स्क्रीन पे हम शो कर देंगे। हमसे कांटेक्ट करने की डिटेल
انشاءاللہ ویڈیو میں ملتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.